Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is speaker, that is lecture number 4 under the unit number 1, that is audio fundamentals. So before start our today's lecture, first of all, we will see what are the learning outcomes. So the first learning outcome is you will able to learn about the speaker. Then you will able to know the woofer and you will able to know the tweeter. So these are the three learning outcomes of our today's lecture. So first of all we will see the speaker. So first a definition of the speaker. So a speaker is an electroacoustic transducer that produces sound in response to an electrical audio signal input. तो स्पीकर क्या है हमारा? स्पीकर मतलब लाउड स्पीकर जो यूज़ होता है कोई फंक्शन में या फिर कुछ मैरिज में या जो कुछ फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ होता है। उस जो लाउड स्पीकर होता है उसको बोलेंगे हम स्पीकर। तो स्पीकर क्या है? एक इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर है जो साउंड प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू, मतलब हमारा इनपुट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल हमारा इनपुट रहेगा और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? साउंड सिग्नल। द स्पीकर्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. So first is cone type and second one is horn type. So the cone and horn type speaker. The cone type, that is the direct radiator where cone or diaphragm is directly coupled to air. अभी ये cone type में क्या होता है कि जो हमारा रेडिएटर होता है या डायफ्राम होता है वो डायरेक्टली एयर को कपल्ड होता है, डायरेक्टली कपल्ड टू एयर. Then the horn type, that is indirect radiator where the diaphragm is coupled to the air by means of horn. अब इसमें हॉर्न टाइप में क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो कपल्ड होता है टू द एयर. किससे? हॉर्न से. मतलब हॉर्न टाइप में हॉर्न से कपल होता है और कोन टाइप में वो डायरेक्टली कपल टू एयर, मतलब वो कपल्ड होता नहीं, वो डायरेक्ट एयर के थ्रू वो कपल्ड होता है. The horn increases the acoustical loading on the diaphragm and thereby increases the efficiency. So it may be described as a device which transforms acoustical energy at high pressure and low velocity to acoustical energy at a low pressure and high velocity. Now the dynamic speaker. So this is the cross-sectional view of dynamic speaker and this is the constructional view of dynamic speaker. तो हमारा डायनेमिक स्पीकर इस टाइप से रहेगा. ये जैसे देखो रेडियो पे यूज़ होता है, रेडियो में इस टाइप से रहता है, अपना टीवी में भी इस टाइप से रहता है. तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो इस टाइप का रहेगा. ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्राइवर commonly called a dynamic speaker. It has a lightweight diaphragm or cone connected to a rigid basket or frame via a flexible suspension, commonly called a spider, that constrains a coil of fine tensile wire to move axially through a cylindrical magnetic gap. तो अब इसका वर्किंग देखेंगे. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अप्लाइड टू द वॉइस कॉइल, जब हम इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द वॉइस कॉइल को तो क्या होगा? अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी किससे? इलेक्ट्रिक करंट से. इन द वॉइस कॉइल मेकिंग इट अ वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जैसे हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट हो गई थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट. किसमें? इन द वॉइस कॉइल. वो क्या करता है? मेकिंग इट अ वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेट. So the coil and the driver's magnetic system interact, generating a mechanical force that causes the coil and thus the attached cone to move back and forth, so thereby reproducing sound under the control of the applied electrical signal coming from the amplifier. So it produces sound कैसे? अंडर द कंट्रोल ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो एम्पलीफायर से हमें क्या मिलेगा? फिर साउंड आएगा. सो नेक्स्ट इज ऊपर्स. तो ये है ऊपर
बराबर है, इस टाइप का रहता है ऊपर। सो Hoopers is designed to produce low frequency sounds typically from around 40 Hz up to about a kilohertz or higher. तो ऊपर क्या करता है? It produces low frequency sounds from 40 Hz up to about a kilohertz or higher. The most common design for a woofer is the electrodynamic driver, which typically uses a steep paper cone driven by a voice coil which is surrounded by the magnetic field. So the voice coil is attached by adhesive to the back of the speaker cone. The voice coil and the magnet form a linear electric motor. When current flows through the voice coil moves in relation to the frame according to the Fleming's left-hand rule, causing the coil to push or pull on the driver cone in a piston-like way. तो इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग है, उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है। तो जब करंट फ्लो होगा कॉइल से, वॉइस कॉइल से, तो जो कॉइल है वो मूव होंगी। कैसे मूव होंगी वो? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उससे क्या होगा? इट कॉजेज द कॉइल टू पुश और पुल ऑन द ड्राइवर कोन इन अ पिस्टन लाइक वे। जो पिस्टन में होता है उस टाइप से वहाँ पे वर्कआउट होगा। द रिजल्टिंग मोशन ऑफ द कोन क्रिएट्स साउंड वेव्स एज इट मूव्स इन एंड आउट। तो रिजल्टिंग क्या मिलेगा हमें? रिजल्टिंग मोशन ऑफ द कोन क्रिएट्स साउंड, बराबर है। उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे क्या क्रिएट होगा? साउंड वेव्स एज इट मूव्स इन एंड आउट। नेक्स्ट इज ट्विटर। तो ये ट्विटर एंड इट्स एक्सप्लोडेड व्यू, इस टाइप से रहेगा ट्विटर। और इसका जो एक्सप्लोडेड व्यू है वो इस टाइप का रहेगा। सो अ ट्विटर इज अ स्पीकर, ये भी एक टाइप का स्पीकर ही है, डिजाइन टू प्रोड्यूस हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज टिपिकली फ्रॉम अराउंड 2000 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ट्विटर ये भी एक प्रकार का स्पीकर है जिसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो डिज़ाइन होता है फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 2000 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इट जनरली कंसिडर टू बी द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। उसको जनरली वो कंसिडर क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग के लिए वो कंसिडर होता है ट्विटर। सो स्पेशलिटी ट्विटर्स कैन डिलीवर हाई फ्रीक्वेंसीज अप टू 100 किलोहर्ट्ज। Then the tweeter in a two-speaker system reproduces frequencies from 1 kHz onwards and in a three-speaker system from 5 kHz onwards। तो ट्विटर जो है वो टू स्पीकर वेव्स में जो प्रोड्यूस करता है साउंड, टू स्पीकर सिस्टम में जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 kHz ऑनवर्ड्स होती है। बट इन अ थ्री स्पीकर सिस्टम में कितनी होंगी? फ्रॉम 5 kHz onwards। Also, there is a super tweeter which covers the range from 8 kHz onwards. A tweeter may be a small cone, permanent magnet speaker, or an electrostatic type. And the PO mappings are PO1, PO3, PO6, and PO7 are mapped to the today's lecture's topic. So, thank you.